مولانا عبد الحلیم حنفی صاحب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ، فرمائیے۔ حضرت آپ حنفی ہیں، حنفیت کے بارے میں تھوڑا بات کرنا تھا۔ ہاں، حنفیوں کے بارے میں تھوڑا بات کرنا ہے۔ آپ کو حنفیت کے بارے میں بات کرنی ہے؟ ہاں کریے، آپ کو حنفیت کے بارے میں کیا بات ہے؟ اصلی حنفی کون ہے؟ بریلوی اصلی حنفی ہے یا دیوبندی اصلی حنفی ہیں؟ دیکھیے، اصل اور نقل تو یہ تو ہم اور آپ تو فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں نا۔ ہاں، تو ہم فیصلہ کریں گے۔ اگر ہم فیصلہ نہیں کر سکے، اگر بغیر فیصلہ کے ہم گمراہی میں ہی رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ تو حجت کام کرتا ہے، تبھی عذاب دیتا ہے۔ قرآن میں بھی اللہ فرماتا ہے جب کسی گمراہ شخص کو اللہ اس وقت تک عذاب نہیں دے گا، وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، کوئی پیغام بھیجنے والے بھیج کر ان کو حجت تام کر کے حق ناحق کی پہچان کرا کے اس کے بعد اس پر حجت تام ہونے کے بعد عذاب کا فیصلہ فرمائے گا۔ تو ایک فرقہ جنت میں جائے گا، باقی 72 جہنم میں جائے گا۔ تو وہ ایک فرقہ والا جو جنت میں جائے گا وہ حق تحقیق کر کے حق پر چل کر جنتی بنے گا۔ ایسا ہی نہیں کوئی بغیر کنفرم کے میں حق پہ چل رہا ہوں یا باطل پہ چل رہا ہوں۔ جب اس کو کنفرم ہی نہیں ہے، جب اپنے ایمان عقائد پر اس کو مستحکم اور بھروسہ ہی نہیں ہے، تو اس کا جنت کا فیصلہ کیوں کر ہوگا؟ آپ کنفرم حق والے اپنی حق کو کنفرم کرے۔ فیصلہ اگر ہم نہیں کر سکتے تو پھر یہ بھی غلط ہے نا۔ فیصلہ کرنے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں جتنی حق کی نشانیاں بتائے ہیں، وہ سارے نشانی کے مطابق جو پھر بیٹھے گا وہ حق پہ ہوگا۔ نہیں، وہ بات تو آپ کی ساری باتیں صحیح ہے۔ مطلب یہ نام سے تو کسی کی طرف لقب کرنا، کسی کی طرف منسوخ کرنا، اس سے تو کسی کی اچھائی اور برائی سازش تھوڑی ہوتی ہے۔ نہیں، نام جب بریلوی دیا گیا کسی کو تو بریلوی نام کے پیچھے کچھ لاجک ہے، کچھ اسباب ہے، کچھ علل ہے جس کی بنیاد پہ بریلوی کہا گیا ہے۔ دیوبندی کسی کو دیوبندی کہتے ہیں تو دیوبندی کہنے کا کچھ مطلب ہوتا ہے، بریلوی کہنے کا بھی الگ مطلب ہوتا ہے۔ وہی بول رہے ہیں نا، جیسے کوئی اپنے آپ کو بریلوی کہہ رہا ہے تو وہ شہر بریلی کی طرف سے اپنے آپ کو منسوخ کر رہا ہے۔ کوئی اگر دیوبندی لکھ رہا ہے تو شہر دیوبندی کی طرف منسوخ کر رہا ہے۔ کوئی اگر مطلب قاسمی لکھ رہا ہے تو مولانا قاسم صاحب نانوتوی کی طرف وہ اپنے آپ کو منسوخ لکھ رہے ہیں۔ تو نام سے کوئی مطلب، یہ تو اپنے ایک پہچان کے لیے، اپنے ایک مطلب اپنی حیثیت کو ظاہر کرنے کے لیے میں کیا ہوں، کس سے تعلق رکھتا ہوں، اس سے تو اتنا ثابت ہو سکتا ہے۔ باقی ہمارے جیسے اعمال جس حساب سے ہوں گے، ان اعمال کو ہی دیکھ کر اللہ تعالیٰ مطلب ہمارے جزا یا سزا کے بارے میں فیصلہ کریں گے نا۔ مولانا صاحب، آپ نے جو کہا کہ کوئی بریلوی کہتا ہے بریلی شہر کی طرف نسبت کرتا ہے، یہ بھی آپ کا کہنا غلط ہے۔ بریلوی علماء وضاحت کے ساتھ بتائے ہیں کہ ہم بریلوی کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کی نسبت سے۔ اعلیٰ حضرت نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں، سنیے بات کمپلیٹ ہونے دیجیے مولانا صاحب، جلد بازی نہ کرے۔ آپ کی بات جیسا میں خاموشی سے سنا تو ایسا بھی آپ میری بات بھی تھوڑا خاموشی سے سنیں تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آئے۔ آپ نے کہا کہ جو دیوبندی کہتا ہے دیوبند شہر کی طرف نسبت کرتا ہے، بریلی بھی کہتا ہے بریلی شہر کی طرف نسبت کرتا ہے۔ یہ بات بالکل سراسر 100% غلط ہے، کیونکہ دیوبندی علماء نے بھی کہا، میں نے خود دیوبند گیا تھا جب ذوالفقار نقشبندی، سنیے نا، میں دیوبند گیا تھا جب ذوالفقار نقشبندی دیوبند آیا تھا پاکستان سے، تو انہوں نے کہا کہ دیوبند یہ کوئی در و دیوار کا نام نہیں ہے، یہ کوئی مدرسہ کا نام نہیں ہے، دیوبند ایک مکتبہ فکر ہے، ایک تحریک ہے، ایک مسلک ہے۔ انہوں نے خود اپنی زبان سے کہا۔ تو آپ یہ بتائیے، دیوبند کی طرف نسبت کرتا ہے تو دیوبند شہر کے رہنے والے ہونے کی وجہ سے نہیں۔ بہت سارے انگلینڈ کے علماء خود کو دیوبندی کہہ رہے ہیں، پاکستان کے علماء خود کو دیوبندی کہہ رہے ہیں، کوئی افریقہ کا علماء دیوبندی کہہ رہے ہیں۔ دیوبند تو افریقہ میں نہیں ہے نا، دیوبند شہر میں ہے۔ اگر کوئی افریقہ میں دیوبندی ہے تو وہ دیوبندی فکر اور سوچ کی بنیاد پر دیوبندی ہے، شہر کی بنیاد پر نہیں۔ اسی طرح اگر کوئی امریکہ میں بریلوی ہے، کوئی پاکستان میں بریلوی ہے، تو وہ بریلی شہر کی طرف نسبت نہیں کر رہا ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت کی سوچ اور فکر کو مان کر وہ اس طرف نسبت کر رہا ہے، فکر کی طرف نسبت کر رہا ہے۔
ये जो भी कर रहा है गलत है, क्योंकि जब इसकी बुनियाद मतलब शुरुआत में इसकी जब इब्तिदा हुई थी तो उस वक्त न देवबंद कोई मसलक का नाम था, न देवबंद कोई न बरेली कोई मसलक का नाम था, बल्कि वो अपने शहर की तरफ अपने जगह की तरफ निस्बत करके मतलब बढ़ा। तो बाद में जैसे वक्त गुजरता गया उस वक्त उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते लोगों ने इसको मसलक के रूप में देखना शुरू कर दिया। आज इसको मतलब हमारा अकीदा मसले के देवबंद के मुताबिक है या मसले के बरेली के मुताबिक है, अब इसको बना दे। लेकिन शुरुआत में ऐसा तो कुछ नहीं था ना। आप तो कुछ पढ़े लिखे, आप तो कुछ समझते होंगे ना। शुरुआत में सुनिए, शुरुआत में जिन्होंने झगड़ा की शुरुआत किया उन लोगों ने गुस्ताखी और मुसलमानों पर ज्यादती करके कुछ किताबें लिखे। ज्यादती जिन किताबों के जरिए से मुसलमानों पर ज्यादती की, मुसलमानों को बिला वजह कुफर का, शिरक का फतवा लगाया, जिस फतवे की बुनियाद पे मुसलमान गुमराह हो रहे थे, तो उन गुमराही के खिलाफ आला हजरत ने आवाज़ उठाया। आला हजरत ने उन गुमराही की निशानदेही की, उन गुमराह फिरके के उलमा से मुकाबला किया। जिस बुनियाद पे आला हजरत की तरफ लोग जुड़ गए, जब आला हजरत की तरफ लोग जुड़ गए तो वो लोग कहने लगे बरेली के मौलाना के साथ हैं हम, और जो गुमराह और गुस्ताख उलमा जो किताबों में गुस्ताखी किया है उन गुस्ताख उलमा के साथ जो लोग देने लगे वो कहने लगे कि हमारे उलमा तो बिल्कुल सही है, हम अपने उलमा के साथ हैं, हम देवबंद के मदरसा देवबंद के उलमा के साथ हैं, तो वो हो गए देवबंदी। और जो बरेली के मौलाना की तरफ निस्बत करे वो हो गए बरेलवी। आप ज्यादती किसने की? ये किताब खुद अरवाह सलासा है, उसके अंदर लिखे गए हैं कि इस्माइल देहलवी ने जो तक़वियतुल ईमान लिखा, तो तक़वियतुल ईमान लिखने के बाद उलमा को बुलाकर मशवरा किए कि मैं ये किताब लिखा हूँ, इस किताब को मैं शाया करना चाहता हूँ, सबसे पहले आप नजर षानी करो इस किताब का, नजर षानी करके बताओ इसमें कुछ खामियां है, कोताही है या नहीं, फिर उसके बाद शाया करेंगे। और मैं बता रहा हूँ कि वो इस्माइल देहलवी खुद कहते हैं कि इस किताब में कुछ मैंने ज्यादती की, यानी शिरक खफी को शिरक जली लिख दिया। तो इस बुनियाद पे मुसलमान लड़ेंगे, ऐसी किताब मैंने लिखा, मुसलमान लड़ेंगे, लेकिन तवक्को है कि लड़ भिड़ कर कुछ ठीक हो जाएंगे। तो आप बताइए, जो किताब जो लिखने वाले खुद कह रहे हैं ऐसी किताबें मैंने लिखी जो मुसलमान आपस में लड़ेंगे, तो ऐसी किताबें शाये करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। लेकिन वहाँ जो उलमा, जिन उलमा से मशवरा लिए गए थे, सुनिए ना, अगर लिखते हैं तो किताब तो मतलब उससे तो उम्मत में और इंतशार पैदा होगा ना। तो उस किताब को, तक़वियतुल ईमान जो किताब है, उस किताब को जब लिखने वाला खुद कह रहे थे कि ऐसी किताब मैंने लिखी जिसमें शाया करूंगा तो उम्मत आपस में लड़ेंगे, लेकिन लड़ भिड़ के खुद ठीक हो जाएंगे। अभी आप लोग बताओ किताब लिखना, शाया करना कैसा रहेगा और इसमें तरमीम करने की ज़रूरत है या नहीं? तो उलमा ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर फतवा राय दिया, मुत्तफ़िक़ा तौर पर उलमा ने राय दिया, उलमा देवबंद ने, कि ये किताब ऐसे ही शाया कीजिए जैसा आपने लिखा, बहुत बेहतरीन लिखा। तो जो लड़ने वाली किताब थी वो लिखी गई, उसको छापकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसका साथ दिया। 5 लाख कॉपी उस किताब को छापकर इंडिया में बांटे गए, जिसकी बुनियाद पे जो किताब के मुसन्निफ का जो तवक्कुल था लड़ेंगे, वो लड़ाई शुरू हुई मुसलमानों के बीच में। जब लड़ाई शुरू हो गई तो शिरक जली को, शिरक खफी को शिरक जली लिख देने थे। अब बताइए शिरक खफी किसे कहते हैं, शिरक जली किसे कहते हैं? शिरक खफी क्या है, शिरक जली क्या है? आप पहले ये वजाहत कर दीजिए थोड़ा। आप तो खुद पढ़े लिखे, ये सब तो मामूली से इसकी नहीं, आप पढ़े लिखे, हम आज उम्मत गुमराही के दलदल में चले जा रहे हैं, उम्मत बहुत मुंतशिर है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, आपको वजाहत करना है। हम ना तो कोई पढ़े लिखे इतने बड़े मतलब काबिलियत अपने आप को समझते हैं। आप भाई मीडिया, आप उलमा का मीडिया चलाते हैं, उलमा मीडिया में आपका नंबर डाला हुआ है, आप इतने बड़े अल्लामा हैं, उलमाओं का मीडिया चलाते हैं। मैं कभी इस तरह की मैं कभी कोई मतलब वीडियो अपलोड करता हूँ ना, मैं इख्तिलाफी बात तो मैं मेरे चैनल पे अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको कोई भी एक ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा जिसमें कि मसलकी इख्तिलाफ की बात हो। वैसा तो मैं डालता भी नहीं हूँ। वैसे पहली बात तो कभी कभी डालता हूँ, उतना टाइम भी मेरे पास नहीं है, कुछ काम काज में फंसा रहता हूँ इधर उधर। अच्छा मौलाना, आप इख्तिलाफी वीडियो तो डालना चाहिए। इख्तिलाफ जब वाज़ेह होगा तब पता चलेगा कि कौन हक है कौन गलत है। आप ये चाहते हैं कि उम्मत कंफ्यूज है, कंफ्यूज ही रहे, और इख्तिलाफ की जड़ जो है मालूम ना हो। इसका मतलब ये नहीं, हम ये चाहते, देखिए
बहुत से उलमा, बड़े बड़े अकाबिर उलमा में से बहुत सारे उलमा ऐसे हैं जो सिर्फ इसी के लिए वो खास है और इसी अहम मुद्दे पर वो काम कर रहे हैं माशाल्लाह, और उनका जो मतलब रिजल्ट है बहुत अच्छा रिजल्ट निकल के आ रहा है। वो आपके हिसाब से जो अच्छा रिजल्ट दिख रहा है ना, मैं वो रिजल्ट का नतीजा बता रहा हूँ। तारिक जमील 54 साल तबलीग, सुनिए ना मौलाना, 54 साल तबलीग जमात में काम किया तारिक जमील। अभी उसको तबलीग जमात से धक्के देके निकाल दिया गया और इज्तिमागाह में बयान करने भी नहीं दिया गया। उसके लोग बहुत हंगामा बर्पा किया, उसके बावजूद उसको तारिक जमील को कोई ठिकाना नहीं मिला, पछता रहा है। आज कह रहा है कि मैं खुलकर तुम लोगों के पोल खोलूंगा, तारिक जमील कह रहा है। अब जो अच्छा नतीजा दिख रहे हैं ना, एक तो पाकिस्तान का तारिक जमील का ये हाल है। इंडिया का जो मौलाना साद है, मौलाना साद को जिंदीक और गुमराह कहा गया। मौलाना साद कहता है कि जो मुझे ना माने वो जहन्नम में जाए, ये सरासर नबूवत के दावे के मुताबिक है। और दूसरा, मौलाना साद साहब खुद को अमीरुल मोमिनीन मानता है और अमीरुल मोमिनीन सिर्फ खुलाफा राशिदीन की ही सिफात है, खुलाफा राशिदीन की ही लक़ब है, उसके बाद कोई अमीरुल मोमिनीन खुद को नहीं कह सकता। और मौलाना साद साहब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक अमल की उन्होंने गुस्ताखी की, कहा कि अल्लाह के नबी ने वलीमा कराया और शानदार वलीमा कराया, जिस शानदार वलीमा की बुनियाद पे अल्लाह की तरफ से मुसीबत आई, यानी अल्लाह की तरफ से मुसीबत आई तो अल्लाह के नबी का जो अमल है, सुन्नत है, उस सुन्नत की वजह से मुसीबत आई बोलकर ये मौलाना साद साहब का बयान है। ऐसे बहुत सारे गुमराही जो एक लिस्ट बनाया मौलाना साद साहब के मुखालिफिन, बहुत मेरे पास खुद कम से कम 100 से ज्यादा क्लिप पड़ा हुआ है। और आपने तबलीग की बात खोल दी तो मैं भी अपना मौका को वाजा कर दूं आपको। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, मैं 12 साल से मस्जिद का इमाम हुआ और मतलब दारुल उलूम आगरा से मैंने तालीम हासिल की है, और अभी तक मैं जमाती उसूल के मुताबिक तबलीगी जमात में 3 दिन, न 40 दिन, न 4 में, अभी तक मैं 1 दिन भी नहीं गया हूँ, ना मेरा वक्त लगा है और ना आगे मेरा जाने का इरादा है। समझ रहे, मेरी बात को गौर से सुन लीजिए। और तबलीगी जमात जो मौजूदा में मुरव्वजा तबलीगी जमात है, जिस हिसाब से लोग काम करते हैं और सारी जिहाद की आयत को, सारे मुजाहिदीन की सिफात को और सारे हदीस को जो गज़वात के हैं वो अपने 3 दिन या 4 महीने पर फिर करके अपनी फजीलत, अपनी शान को बढ़ाते हैं। मैं तो खुद मतलब इस चीज़ के खिलाफ हूँ। और आप सोशल मीडिया का चूँकि ज़माना है, अगर आप देखेंगे तो मौलाना साहब जितनी भी गुमराहकुन बातें करते हैं उस पर अक्सर उलमाए किराम ने खुद मतलब ये मसलक देवबंद के उलमा ने खुद उस पर मतलब तनकीद करते हैं, कोई उनके सपोर्ट नहीं करते हैं। कुछ उलमा है जो उनके पीछे उन्हीं के 4 मस्जिद के अंदर मरकज में रहते हैं, उनके आगे पीछे करते हैं, वही उलमा सिर्फ उनकी बातों को मतलब तस्दीक करते हैं, जो वो कहते हैं अंदर भक्त की तरह उनकी बात को मानते हैं। बाकी अक्सरियत 90% उलमा मौलाना साहब की अकाइद से बिल्कुल मतलब वो इख्तिलाफ करते हैं। आपको कुछ जानते होंगे सोशल मीडिया के जरिए से। मैं बरेली भी हूँ, लेकिन देवबंद के एक रग रेशे से मैं वाकिफ हूँ। और आप जो कह रहे हैं ना 90% उलमा तबलीग जमात के मुखालिफ हैं, ये बिल्कुल आपका ये गलत नजरिया है। 90% नहीं, बल्कि सुनिए ना, जमात वालों का जो रवैया है उलमा के साथ बिल्कुल सही नहीं है। अभी बांग्लादेश के इस्लाम में वहाँ के हालात आपने देखे होंगे, और मतलब बारहा देखते हैं, कभी इधर इमाम को भगा दिया, कभी इमाम को उधर भगा दिया, कभी वहाँ लड़ाई, कभी यहाँ ये उलमा के अंदर लड़ाई करवाते हैं। वो लोग मतलब भगा देते हैं मस्जिद से। क्यों भगा देते हैं? आप 40 दिन नहीं जा रहे, जमात का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आप साल नहीं लगा रहे हैं, इस बिना पर इमाम को भगा देते हैं। हालांकि वो पहले से अच्छा खासा वो सलाहियतमंद आलिम होते हैं, वो बड़े मदरसे से पढ़े हुए होते हैं, लेकिन फिर भी उनकी उस इल्म को, उस सनत को, और वो मुफ्ती अपनी जगह हो, वो अपनी जगह कासमी हो, या मतलब कितने बड़े आलिम क्यों ना हो, लेकिन उसी पर जमात में ना जाने की वजह से उनको मतलब एक पैसे का भी मतलब उसको हकदार नहीं समझते उनको। आप कह रहे हैं 90% जमात के मुखालिफ हैं, मैं तो कहता हूँ 95% जमात के फेवर में है। आपके जैसे तबलीग जमात की मुखालिफत करने वाले हजारों में एक मिलेंगे, हजारों में एक। मैं मौलाना अगर आप अपना आपका तो नंबर आ गया, इंशाल्लाह मैं आपको तबलीगी जमात की मुखालिफत करने वाले जो उलमाए देवबंद के बड़े बड़े उलमा है, शोहरत याफ्ता, जैसे मौलाना इलियास साहब घुमान, मौलाना खलील साहब सज्जाद नोमानी, और इसी तरीके से और जो मतलब मौलाना अंजर शाह का है बेंगलोरी, और इसी तरह से मौलाना तालिब रहमानी, इसी तरह से बड़े बड़े जो उलमा है, मौलाना ताहिर गियावी, जो बड़े उलमा है, उसी तरह से मुफ्ती यूनुस साहब दिल्ली से जो 2 साल पहले उनके साथ मारपीट की थी
जमात वालों ने जानलेवा हमला उनके ऊपर किया गया था। ये जो बड़े उलमा है उनकी बयान में आपको भेज देना, वार्ता सुनिए। किसी बड़े उलमा ने जमात वालों की तायद नहीं की है, सब उनसे मुखालिफ, सब उनसे इख्तिलाफ कर रहे हैं। ये लोग जो है ये आगे चल के दीन को बर्बाद कर देगा। मौलाना ताहिर याबी तो आज से 8 साल पहले कहा था ये मौलवी साहब का जो गिरोह है तो तबलीग के नाम पर उम्मत को गुमराह कर रही है, और हकीकत में आज वो दुनिया से मरकर चले गए, दुनिया से रुखसत हो गए मौलाना ताहिर याबी साहब। आज उनकी बात बिल्कुल सही साबित हो रही है। तो ये जो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब पाकिस्तान के जो क्या हकीमुल इस्लाम मतलब इतने बड़े आलिम है, वो भी इनकी मुखालिफत करते हैं। उनको भी एक बार बयान करने से रोक दिया गया था, आपको पता होगा ये सारी बातें। मैंने खुद तकी उस्मानी साहब के जुबान से मैंने सुना कि इस वक्त तबलीग की जरूरत नहीं रही, क्योंकि इस वक्त तबलीग जमात एक फितना बन चुका है, मस्जिद में एक दूसरे को मुनाफिक। कल मेरी मस्जिद में 3 दिन की जमात थी, मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ, मैं ना एक दिन मैं अपना बस नमाज पढ़ाता हूँ, मैं उठ के चला आता हूँ। वो लोग दीन की बात करें, गश्त करें, क्योंकि हमें इमाम है उस पर हम जबर भी नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन जब वो हमसे कहते हैं हजरत आप टाइम नहीं देते तो हमको टाइम दीजिए, फिर मैं उनसे खुलकर बात करता हूँ। देखिए आप अपना काम कर, अपना काम कीजिए, हम अपना काम कर, हमको अपना काम करने दीजिए। बीच में मतलब आप क्यों टाइम नहीं दे रही है, सब अगर पूछेंगे तो खामखा का लफड़ा होगा मोहल्ले में और हमारे बीच में और आपके बीच में, और फिर मतलब नुकसान, आपको भी नुकसान होगा, मुझे भी नुकसान होगा। इसलिए अगर फिर उसके बाद जबरन करते हैं तो फिर मैं उनसे बैठ करके फिर अच्छी तरह से 1 घंटा 2 घंटा तक बात करता हूँ, और ऐसा बात करता हूँ कि फिर हमेशा के लिए उस जमात से मेरा सलाम कलाम सब बन हुआ था। कितने जमात हमारे हल्के के तमिलनाडु में रहता हूँ, कम से कम 2-3 हल्के वालों से मेरी बात नहीं होती है। इसी बिना आए और मैंने उनका साथ नहीं दिया कि वो कभी मुतवल्ली को शिकायत किया, कभी उनको शिकायत किया। फिर जब मैंने खोलकर बात किया तो दुश्मनी हो गई। तो दुश्मनी है, अगर इस बिना पर दुश्मनी है तो मुझे दुश्मनी भी मंजूर है, कोई दिक्कत नहीं है। अल्लाह मुझे इस पर पकड़ नहीं करेंगे, मेरी पकड़। अच्छा, जो शिरक, ये मैं बता रहा था कि आप जो है तबलीग जमात से नाला है, आप तबलीग जमात से बेजार है, बेजारी का इजहार भी नहीं कर रहे खुलकर। जितने लोग आवाम फंस रहे हैं आप देखते हुए भी, क्योंकि हदीस में है। और एक बात बतला दूं मैं आपको, अभी तक मैं तबलीग जमात वाले से साफ कहता हूँ, आप लोग मतलब काम कीजिए, काम करना कोई गलत नहीं है, मेहनत कीजिए, दूसरों को दीन की तरफ बुलाइए, लेकिन इसी को मतलब पूरा दीन की बका के लिए और दीन को फैलाने का सबब समझेंगे तो ये गलत है। क्योंकि इनके अलावा और भी बहुत सारे शोबे हैं और बहुत सारे मतलब हल्के हैं जहाँ से दीन को फैलाया जा सकता है। अब तक मैंने कम से कम गैर मुस्लिमों को 3 आदमी को मैंने अल्लाह की फजल से इस दायरे इस्लाम में मैं उसको दाखिल किया हूँ। और आज मेरी मस्जिद में मेरे पीछे अगर 5 वक्त का पाबंदी के साथ कोई नमाज पढ़ने वाला है तो वही गैर मुस्लिम ही पढ़ता है 3-5 वक्त की नमाज मेरे पीछे। और बाकी जो लोग हैं 4-5 आदमी कभी असर में आया, कभी मगरिब में, कभी फजर में, मतलब 5 वक्त पाबंदी तो नहीं आते हैं। अच्छा, एक बात मौलाना आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप जितने मेरी बात जरा थोड़ा गौर से सुनिए, आपकी बात मैंने समझा। जो आज दुनिया में जितने भी देवबंदी है, देवबंदियत फैलाने में अहम किरदार तबलीग वालों ने निभाया है। तबलीग वालों ने आवाम को बरेलवियत से निकालकर, दूसरे मसलक से, दूसरे फिरके से निकालकर नमाज रोजे को दिखाकर देवबंदी बनाया है। पूरे 80% देवबंदी आज दुनिया में जितने देवबंदी है उसमें 80% सिर्फ तबलीग की वजह से देवबंदी बना है। आप इतनी बड़ी तहरीक को आप जो है बिल्कुल नकार रहे हैं, इसकी वजह क्या है? अरे तहरीक कितनी बड़ी क्यों ना हो, तहरीक देखिए जब तक वो हक पर रहेंगे और क्या कहते हैं इस्लाम को मतलब सामने रखकर उनके मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे तो तहरीक है। और आदमी की तादाद ज़्यादा हो जाए, तहरीक मतलब बड़ा हो जाए, पूरी दुनिया में उनके टीम के लोग पहुंच जाए और जगह जगह पर तबलीग के लोग, इससे किसी की कबूलियत की मतलब थोड़ी मतलब ये दलील समझी जाएगी इसको। आज तो देवबंदी यही दलील देते हैं कि देखो इतना काम हो रहा है तबलीग वालों से, इतने लाख लोग नबी अलैहिस्सलाम ने खुद पेशिंग गोई की है ना कि पूर्व क़यामत में मेरी उम्मत दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग होंगे, सबसे ज़्यादा तादाद में होंगे, लेकिन उनमें से चंद ही लोग ऐसे होंगे जो मतलब क्या कहते हैं कामिल मोमिन होंगे। हालांकि साहबा ने कहा मतलब क्या उस वक्त तो मुसलमान नहीं होंगे, पूछा तो नहीं मुसलमान तो इस कदर होंगे मतलब चपटे मुसलमान, लेकिन झांक ईमान वाला उनकी हैसियत भी पानी के ऊपर झांक किसी होगी, कहा है नहीं क्या है बताइए? जी बिल्कुल तो सही है। तादाद को हम ये दूसरे लोग जो मतलब क्या कहते हैं जो दीन में मतलब नए आते हैं, जिसको दीन की ज़्यादा सूझबूझ नहीं है,
वो देखते हैं इतना बड़ा इज्तिमा, इतना बड़ा मतलब स्टेज, और इतने लोग यहाँ से आ रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, फारिन जमात जा रहे हैं, कुवैत जा रहे हैं, बांग्लादेश जा रहे हैं, वो देखते हैं। हम तो हकीकत बता रहा हूँ और मैं कसम खा के बोल रहा हूँ, मेरे सामने ये सब की कोई हैसियत नहीं है। मैं अपने हिसाब से अपना काम करता हूँ, बस मेरे सामने बस यही है। एक बात मैं ये समझना चाहता हूँ, अगर हम बरेली देवबंदी, सुनिए ना, तो मैं नाम सुनना ही नहीं चाहता हूँ। आप सुनिए, मैं यही बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हम और मेरे जितने भी उलमा में से मेरे दोस्त है, जिससे मेरे रेगुलर बात होती है, कोई भी तबलीग से जुड़ा हुआ उलमा मेरे पास मतलब कांटेक्ट में नहीं है। अक्सर उलमा किराम वो है जो मतलब अहले हदीस है। तमिलनाडु में भी कुछ अहले हदीस उलमा है, उन्हीं से मेरा सलाम कलाम बारहा मतलब जाना आना होता है। कई मतलब यहाँ पे ट्रस्ट भी चलता है, मैं उसमें मशवरे में जाता हूँ, मीटिंग में भी जाता हूँ। मेरा अक्सर जाना आना उन्हीं लोगों के साथ होता है। यानी आप अहले हदीस को ज्यादा तरजीह देते हैं तबलीग के मुकाबले में? ज्यादा हम तरजीह देते हैं अभी भी। तो इसी बुनियाद पे तो आज जो तबलीग जमात से लोग जो है मुंसलिक होते हैं, तबलीग जमात में जाके 4 महीने लगा के नमाजी मुझे तो कुछ बोलने दीजिए, आप जो है बहुत ज्यादा जज्बाती हो जा रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जितने तबलीग जमात वाले तबलीग जमात में जाके 4 महीना चिल्ला लगा के नमाजी बनते हैं, नमाजी बनने के बाद इनको दीन का शौक होता है, तहकीकत का जज्बा पैदा होता है, हदीस पे अमल करने का जज्बा होता है, फिर हदीस पढ़ने लगते हैं, फिर हदीस पढ़ते पढ़ते जब हदीस की तहकीक में जाते हैं और इनके ताल्लुकात गलत उलमा से जुड़ने की वजह से, अहले हदीस से जुड़ने की वजह से, फिर वो तहकीक के जज्बे में अहले हदीस बन जा रहा है। ज्यादातर देवबंदी अहले हदीस के गैर मुकल्लिदों के चंगुल में इस वजह से फंस रहे हैं कि देवबंदी उलमा एक तो कहे हदीस ही मत पढ़ो और कोई सवाल ही मत पूछो, अंध वक्त बनकर तबलीग जमात का सारी जो हदीसें जिहाद की हदीसें वो तबलीग जमात के चिल्ला से जोड़ दो, जो भी जिहाद की हदीसें हैं, सवाब की जितने हदीस हैं सब जो है गश्त के साथ जोड़ दो। ये देख कर जो है आवाम जब उकता जाते हैं तो आवाम को कहते नहीं उकताना नहीं, इसी में लगे रहना, सिर्फ फजाइल अमल ही पढ़ना, दूसरी किताबें नहीं पढ़ना। और फिर वो दूसरे उलमा के पास जाते हैं, वो उलमा कहते हैं भाई तुम हदीस भी पढ़ो, हदीस खुद से पढ़ लो, जैसा समझो उस पर अमल करते रहो। तो फिर वो अपने समझ के मुताबिक फिर अहले हदीस के दलदल में फंस जाता है। वो उनसे राब्ता ही खत्म कर लेते हैं ऐसे उलमा जमात वाले। हाँ, तो फिर ये सही है। आप जो हनफियत के हनीफी होकर आप अहले हदीसों से अवाम को जोड़ रहे हैं, तो ये तो आपकी हनफियत का नुकसान है। नहीं, ये कोई नुकसान नहीं। देखिए नुकसान फिर क्या है? अहले हदीस गुमराह नहीं है आपकी नजर में? नहीं, अहले हदीस क्यों गुमराह है? जाकिर नाइक का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, और जाकिर नाइक का कोई बयान मेरे ख्याल से मतलब मेरे नज़र से गुजरता होगा जिसको मैं बगैर देखे उसके ऊपर झलता हूँ। मैं हर बयान, हर उसका मैसेज मैं उनका सुनता हूँ। और चूँकि मतलब वो गैर मुस्लिम के बारे में मतलब हिंदुइज्म के बारे में ज़्यादा खुलकर बात करते हैं, उनका ऑडियो क्लिप सुना करके मैं 3 आदमी को मुसलमान बना चुका हूँ मैं। अच्छा, वो तो मुसलमान बनाए या फिर क्या बनाए वो तो अल्लाह बेहतर जानता है, क्योंकि इस्लाम के अंदर जो 73 फिरके हैं वो एक ही मुसलमान, सच्चा मुसलमान एक ही है, 73 सच्चा मुसलमान नहीं है, क्योंकि हर एक का रास्ता दूसरे से अलग है। जो तो मतलब जहन्नम में जाएंगे, एक ही जहन्नम में क्यों जाएंगे? वो जहन्नम में अकायद की गलती की बुनियाद पे जहन्नम में जाएंगे। बिल्कुल, अकायद गलत होंगे, हालांकि अपने आप को मतलब हक पर ही साबित करने की वो कोशिश करेगा। तो हक पे जब साबित नहीं कर पाएगा, अपने बंद कमरे में खुद को हक पे साबित करना अलग बात है, जहाँ आमने सामने होता है तब हक पे साबित करना अलग होता है। हम हक पे साबित करते हैं, सबको डंके के चोट पे मैदान में बिठाकर डंके के चोट पे हक साबित करते हैं। और जाकिर नायक और मिर्जा मंगल जैसा लोग जो है बंद कमरे में बैठकर हक को साबित करता है, खुद को अपने मुंह मियां मिट्टू बनता है। तो जाकिर नाइक को खामियां हैं, गलतियां हैं। जाकिर नाइक कहता है यजीद को भी रहमतुल्लाह अलैह कहना चाहिए, उसका कोई ठोस सबूत है? कहीं नहीं है यजीद के बारे में। और यजीद और कहते जाकिर नाइक ये कहता है कि इमाम हुसैन करबला में गए, वो गलती थी। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गलत रास्ते में जाके कत्ल हुए और उनको जाना नहीं था, और ये सियासी जंग था। इमाम हुसैन हुकूमत के लालच में गए थे, माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, ये कहना है। तो ये कितनी बड़ी गलती है। सारे उलमा से 1400 साल के नहज से हटकर
اسلاف اور تمام اہل سنت کے موقف سے ہٹ کر ذاکر نائک جو ہے خارجیت بیان کر رہا ہے. ہاں ان مسئلہ دیکھیے جس مسئلے کو وہ کھول کر وضاحت سے بات کرتے ہیں نا، میں اس کو سنتا اور اس کو مطلب اس سے کچھ سیکھتا بھی ہوں، لیکن جو اختلافی بات ہے جس سے مطلب جو وہ بات ہے جن کا مطلب علماء کرام انکار کرتے ہیں کہ صحیح نہیں ہے، تو ان کو ہم خود نہیں سنتے ہیں. تو پھر فین کیسے ہوئے؟ پھر فین ہونا ایک عالم ہو کے ایک ان پڑھ جاہل کا فین ہونا کیسی بات ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ مطلب ایک آدمی اگر کچھ برائی کر رہا ہو تو ان کی اچھائی کو بھی ہم برائی میں شمار کر لیں، نہیں ایسا ہو سکتا ہے نا. نہیں، اچھا جو نبی کے گستاخ ہیں ان کی کوئی اچھائی ہو ہی نہیں سکتی. اگر کائنات میں اگر کوئی بدترین مخلوق ہے جو نبی کے گستاخ ہے، وہ کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی مر چکے ہیں اور ان کے کوئی ان کا ہماری پکار کو سن نہیں سکتے، ان کو مان نہیں سکتے، ان سے مانگ نہیں سکتے، تو یہ ان کی گمراہی ہے. نہیں وہ تو سمجھانے کے لیے مطلب سمجھانے کے لیے غلط خلاف شرع بات سمجھانے کے لیے کہنا ہے. لفظ کو چونکہ عوام کے مطابق تھوڑا سمجھانے کے لیے مطلب عوام کو مطابق گمراہی والی بات عوام کو سمجھانے کے لیے تو عوام اور گمراہ ہوگا. عوام کو سمجھانے کے لیے تو ہدایت کی باتیں بہت سارے ہدایت کی باتیں اس لیے بولتے ہیں تاکہ لوگ مطلب شرک سے اور قبر پوجا سے مطلب لوگ دور ہو جائے. شرک اور قبر پوجا کسے کہتے ہیں ذرا بتائیے تھوڑا. شرک اور قبر پوجا ذرا سمجھ لیتے ہیں. جیسے آج مطلب ہے نا، مطلب کچھ لوگ مطلب جو بریلوی مسلک میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو تو نماز پڑھتے نہیں ہے، روزہ رکھتے ہیں، لیکن ان کا جو عقیدہ ہے وہ یہی سوچتے ہیں کہ ہم قبر پہ جائیں گے، چادر چڑھائیں گے، وہاں سے کچھ اپنی مرادیں مانگیں گے اور وہی سے ہماری یہ چیز پوری بھی ہوگی، وہ یہی سوچتے ہیں نا. تو یہ کیا ہوا؟ شرک ہوا؟ نہیں، اللہ کے علاوہ کسی غیر کے سامنے سجدہ کرنا تو شرک ہی ہے نا. سجدہ کرنا شرک نہیں ہے. آپ کو کس نے کہا سجدہ کرنا شرک ہے؟ آپ دیوبند کے علماء کے بارے میں بھی آپ اگر اچھی طرح پڑھ لیتے، یعنی تبلیغ جماعت کے علماء سے تو آپ بدزن ہیں ہی، اچھی بات ہے، لیکن آپ اگر جو علماء دیوبند کے متفقہ اکابر ہیں ان کی بات اگر سمجھ لیتے تو آپ نہیں کہتے کہ شرک کر رہا ہے. عوام کو بلا وجہ شرک کہنا، شرک کو کتنا بڑا گالی ہے شرک، آپ جانتے ہیں. ان الشرک لظلم عظیم، شرک سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں. آپ بتائیے، میں ایک دیوبند کا ایک واقعہ بتاتا ہوں. دارالعلوم دیوبند سے ڈیلیگیشن گئے سعودی عرب، جب وہاں کے سعودی حکومت جو ہے صحابہ کے مزارات کو توڑ رہے تھے اور وہاں قائد میں قتل عام ہو رہا تھا 1922 میں. 1922 میں 3 لاکھ مسلمانوں کو قتل کیا آل سعود نے. کتنے؟ 3 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام ہوا. یہ سب تاریخ آپ جانتے نہیں ہوں گے کیونکہ ذاکر نائک اگر یہ سب چیزیں جانتے ہیں نا تو ذاکر نائک کا فالوور آپ نہیں رہتے. تو میں ایک واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں. جب سعودی عرب میں قتل عام ہو رہا تھا، صحابہ کے مزارات بھی توڑے جا رہے تھے، مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا تھا، تو اس وقت جو ہے دیوبند سے مولانا شبیر عثمانی صاحب اور مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، یہ دونوں دیوبندی نہیں تھے، اور شبیر عثمانی صاحب دیوبندی تھے، اور حسین احمد مدنی، شبیر عثمانی اور بڑے بڑے ان کے دیوبند سے اکابر وہاں گئے تھے مکہ شریف. جا کر وہاں کے لوگ، وہاں کے بادشاہ سے ملاقات کیے. ملاقات کر کے بولے کہ آپ نے اتنے مسلمانوں کو قتل کیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آل سعود نے کہا کہ یہ لوگ جو ہے قبر کو سجدہ کرتے ہیں، قبر کو سجدہ کرتے ہیں اور مردے سے وسیلہ لیتے، صحابہ کرام سے اور نبی سے وسیلہ لیتے. اس وجہ سے یہ مشرک ہو گئے تھے، اس لیے ان کا قتل ضروری تھا. تو پھر شبیر عثمانی صاحب نے سب کی طرف سے رہنمائی کی اور بادشاہ کو، آل سعود کو بتایا کہ آپ بتائیے ہر سجدہ عبادت ہے؟ ہر سجدہ عبادت ہے؟ تو بولے ہاں ہر سجدہ عبادت ہے. تو پھر شبیر عثمانی صاحب نے کہا تو یوسف علیہ السلام کو جو ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا اور یعقوب علیہ السلام نے بھی سجدہ کیا، تو یوسف علیہ السلام کو جو یعقوب علیہ السلام نے سجدہ کیا، تو یہ کیا سجدہ عبادت تھا؟ تو بولے نہیں. سجدہ عبادت ہوتا تو یوسف علیہ السلام کی عبادت کر کے خود یعقوب علیہ السلام مشرک ہو جاتے. اور پھر فرشتوں کو آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، وہ کیا سجدہ عبادت تھا؟ تو بولے نہیں. تو پھر ثابت ہوا کہ ہر سجدہ عبادت نہیں، ہر ساجد عابد نہیں. تو اگر اس امت میں سجدہ منع ہے تو
حرام کے حد تک ہے، حرام کے حد تک، شرک کے حد تک نہیں ہے، کیونکہ شرک کبھی حلال نہیں ہوتی. شرک آباد الآباد کے لیے شرک ہے، اور توحید آباد الآباد کے لیے توحید ہے، کیونکہ اللہ کی ذات و صفات میں تغیر نہیں ہے، اور توحید اور شرک اللہ کی ذات و صفات سے منسوب ہے، منسلک ہے. تو توحید بھی اللہ کی ذات و صفات کو ماننے کا نام ہے، اور شرک اللہ کی ذات و صفات میں شرک کرنے کو شرک ہے کہتے ہیں. تو اس وجہ سے کہ اگر کوئی سجدہ کرتا ہے جاہل عوام، کسی ایک دم ان پڑھ سے ان پڑھ عوام، اس کو آپ جا کے کہیے کہ اللہ کتنے ہیں؟ ایک ہے، مطلب سب میں ایک بھی پوری دنیا میں چادر چڑھانے والے، مزار پہ سجدہ کرنے والے کروڑوں عوام میں سے ایک عوام کو بھی آپ یہ نہیں بولتے ہوئے دیکھیں گے کہ اللہ دو ہے یا ہمارے بزرگ اللہ کے شریک ہیں. وہ بھی کہتا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، لیکن وہ سجدہ کو تعظیم سمجھتے ہیں. تو تعظیم سمجھ کے اگر نہیں کہتے ہیں، یہ بات دیکھتے کہتے نہیں ہے، لیکن عمل سے تو مطلب عمل سے تو سجدہ تعظیمی ظاہر ہو رہا ہے، اور سجدہ تعظیمی شرک نہیں، حرام ہے. حرام ہے، جیسا عوام آپ کے جو کروڑوں عوام تبلیغ جماعت میں جا کے حرام کام کر رہا ہے آپ کی نظر میں، کیونکہ فتنہ کر رہا ہے، حرام ہے. اور پورے دیوبندی 80% دیوبندی تبلیغ جماعت کے ہی ہے، 80% دیوبندی عوام تبلیغ جماعت سے، سب حرام کام کر رہا ہے. تو اور جو کچھ بریلوی عوام جو سجدہ کر رہے ہیں، کچھ پورے عوام نہیں. اور ہمارے علماء سجدہ تعظیمی، قبر کو سجدہ کرنا، طواف کرنا حرام سمجھتے ہیں، اور چادر پہ چادر چڑھانے کا دھندا اس کو بھی حرام سمجھتے ہیں، اور عورتوں کی بے پردگی کو حرام سمجھتے ہیں. تو یہاں جو قبر پوجا نام کی کوئی چیز نہیں ہے. ہاں، کوئی بھی بریلوی عوام قبر کا پوجا نہیں کر رہے ہیں. آپ اگر الزام لگا رہے ہیں، الزام کا گناہ بہت سخت ہے. الزام لگانے کا گناہ نہ کرے، اپنے اعمال کو خراب نہ کرے. ہم تو آپ کا مسلک بھی نہیں جانتے ہیں، آپ کون ہے نہیں، کس مطلب کا فالو کرتے ہیں. میں شروع میں بتایا کہ میں بریلوی ہوں، اور آپ کو میں نے غیر مقلد اور دیوبندیوں کے بارے میں پوچھنے کے لیے کال کیا تھا، کیونکہ آپ کے اکابر جیسا اسماعیل دہلوی پہلے رفع دین کرنا شروع کیا تھا، اور رفع دین کرتے کرتے پھر جب لوگوں میں اختلاف ہوا تو کہا کہ میں تو رفع دین کو سنت سمجھتا ہوں، زور سے آمین کہنا، امام کے پیچھے قرات کرنا میں سنت سمجھتا ہوں. یعنی وہ حنفیت سے بغاوت کر کے دیوبندیوں کو غیر مقلدیت کا زہر جو ہے اسی نے پھیلایا ہے، اور اس کو دیوبندی عوام جب سے ہم مدراس میں رہ رہے ہیں، مدراس میں تو ایسا یہاں پہ ماحول ہے، یہاں تو دیوبندی اور بریلوی مطلب سب ایک ہی جیسا یہاں پہ ہے. چادر بھی چڑھا رہے ہیں، درگاہ بھی ہے، اور جمن بھی جا رہے ہیں، اور سب عرس بھی ہو رہا ہے. محرم کو میں نے چل رہا ہے نا، میرا لگ گیا، عرس بھی چلے گا بھی درگاہ پہ، عرس بھی چل رہا ہے، جماعت بھی چل رہا ہے اسی مسجد میں. تو جماعت والے سنیے نا، جماعت والے وقت کبھی انشاءاللہ مدراس گھومنے کے لیے سنیے، جماعت والے یہی تو منافقت کرتے ہیں. جماعت والے اگر علماء دیوبند کے عقیدہ کھل کر بیان کرے تو کوئی بھی جماعت میں جائے گا نہیں، سب جماعت والوں کو لات مار کے مسجد سے بھگا دے گا، اور جماعت والوں کا کام بھی بند ہو جائے گا. دیوبندیہ جماعت میں نہ میں کبھی جماعت کے موضوع پر بیان کرتا ہوں، نہ کسی جماعت میں جانے کی میں صلاح دیتا ہوں کسی کو. میں نہیں، آپ جو اپنے عقیدہ چھپا کے جماعت والے اپنے عقیدہ چھپا کر وہاں پر اڈا بنا رہے ہیں بریلوی عوام کو اپنی طرف کرنے کے لیے، تو یہ منافقت ہے. اسے شیعہ لوگ کرتے ہیں، اس کو تقیہ کہتے ہیں. یعنی حق کو چھپا کر لوگوں میں گل مل کر جو ہے اپنی گمراہی پھیلانا، یہ شیعہ لوگوں کا تقیہ ہے. آپ شیعہ سے زیادہ تبلیغ والے کر رہے ہیں، اور دیوبندی علماء کر رہے ہیں تقیہ. اگر آپ لوگ تقیہ کرنا چھوڑ دیں، پبلک کو کھل کر بتائے اپنے علماء کا عقیدہ، تو ایک بھی دیوبندی ان کا ساتھ نہیں دے گا. آج جو کہہ رہے ہیں آپ دیوبندی بریلی ایک ساتھ ملے ہوئے ہیں، یہ آپ کی تقیہ کرنے کی وجہ سے، منافقت کرنے کی وجہ سے ہے. حق بیان کیجیے. اگر آپ کے نظر میں علماء دیوبند حق ہے تو آپ کھل کر علماء دیوبند کے عقیدہ کو کھل کر بتائیے، تو کوئی بھی آپ کا سپورٹ نہیں کرے گا، آپ سے دور ہو جائے گا. آپ لوگ جو ہے لوگوں کو دیوبندیت پھیلانے کے لیے مداہنت اختیار کر رہے ہیں. مداہنت کہتے ہیں کہ حق کو چھپانا اور گمراہی ظاہر کرنا.
ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए जगह जगह के हिसाब से मतलब सब काम करना पड़ता है। आप तो सब काम करके उलमा देवबंद की जो गुमराही है, सब काम करके उलमा देवबंद की गुमराही। तमिलनाडु का जो इलाका है और जो ये तमिलनाडु सूबा है, यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर मतलब देवबंदी और बरेलवी और उलमाए देवबंद बरेलवी ये सब मतलब ये लोग जानते भी नहीं। यहाँ मतलब सिर्फ जानते हैं मतलब बस मतलब वही बोल रहे हैं ना, यहाँ पे दरगाह पे भी जा रहा है, जमात में भी जा रहा है, उस तरीके का सब चीज चलता है। हम कुछ फातियाँ देते हैं, सब काम करते हैं यहाँ पे। मतलब तमिलनाडु के अंदर माहौल यहाँ पे है। आप जो है आप है ना बिदअती, खुद बिदअती बने हुए हैं। अशरफ अली थानवी भी इसी तरह 13 साल जो है बिदअती बनकर काम किया। और बाद आप तो एक तो मुशरिक जिनका मतलब ऐसा मौलाना, आप जिसका कमाई खा रहे हैं, जो लोग आपको खिला पिला रहे हैं, नजराना दे रहे हैं, उनको आप मुशरिक और कब्र खुजवा भी समझ रहे हैं। और जो चादर चढ़ा रहे हैं, आपके पास नमाज भी पढ़ रहे हैं, आपको तनख्वाह दे रहे हैं, आप उनको मुशरिक और बिदअती समझते हैं, कब्र खुजवा समझते हैं। हम पहले बयान किया कि जो लोग आवाम कब्र को सिजदा करते हैं वो तो शिरक है, तो मुशरिक हुए। इस तरह के लोग 100 में एक आदमी है, बोले ना को ये साथ बोला ना, 100 में एक आदमी ऐसे बोल के बोला है ना। 100 में एक आदमी ऐसा है, एक भी नहीं है। 100 में भी एक आदमी नहीं दिखा सकते जो खुदा दो समझता हो, दो खुदा है समझता है, अल्लाह वाले को खुदा समझता हो, खुदा के शरीक समझता हो, ऐसे एक भी नहीं है, एक भी नहीं है। वो सिर्फ कम इल्मी की बुनियाद पे ताजीम समझ रहा है कि सिजदा करना ताजीम है, हालांकि सिजदा करना ताजीम नहीं है, सिजदा करना हराम है। बुजुर्गों की ताजीम नहीं हो सकती सिजदा करके, ताजीम और सिजदा और तवाफ कब्र के साथ नहीं। और इसी बुनियाद पे इसको समझाने के लिए मौलाना सुनिए, इसी को समझाने जाकर जाकिर नायक कहता है कि नबी से भी नहीं मांग सकते, नबी से नहीं मांग सकते तो कुरान के खिलाफ है ये। कुरान में अल्लाह फरमाता है वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। क्या नबी, अगर आपकी उम्मत गुनाह करे तो आपके बारगाह में आए, अल्लाह से भी माफ़ी मांगे और अल्लाह के नबी से भी सिफारिश की दरखास्त करे। तो नबी से मांगना तो अल्लाह के कुरान का हुक्म है, नबी से सिफारिश मांगना अल्लाह के कुरान का हुक्म है कि अगर गुनाह करो, गुनाह से माफी मांगने के लिए नबी के बारगाह में जाओ। हाँ वो बात तो सही है। हाँ, तो फिर एक गुमराह जो ईमान अकीदे के खिलाफ बयान दे, उससे दीन का क्या काम होगा? वो 2-4 हिंदू को आप समझा के, हिंदू को तो आप समझा सकते क्योंकि उसको इस्लाम मालूम नहीं, वो इस्लाम के अंदर आके भी वो जो काफिर का नजरिया है वही नजरिया के मुताबिक इस्लाम में आकर भी इस्लाम के अंदर नुकसान करेगा। वो सही इस्लाम सिखाइए। अगर हिंदू को भी इस्लाम में लाए हैं तो उसको सही इस्लाम सिखाइए कि इस्लाम में नबी से मांगना शिरक नहीं बल्कि नबी से मांगने का हुक्म है। वसीला का मुनकिर जाकिर नाइक बोलेगा वसीला साबित नहीं है। आप जाकिर नाइक की गुमराही बताऊं, श्रीलंका गया था 8 साल पहले, श्रीलंका जाके वसीला के खिलाफ बयान दिया तो हमारे उलमा ने कहा कि आपने वसीला के खिलाफ जो बयान दिया एक किताब से साबित करे। तो बोले मैं कल साबित करूंगा, और कल साबित करने का वादा करके रात में साबित नहीं किया। रात में अचानक फ्लाइट पकड़ के जाकिर नाइक श्रीलंका से भागा। वो क्लिप मैं भेजूंगा, आप सुन लीजिएगा, इंग्लिश में है वो, आप ट्रांसलेशन करके श्रीलंका के जो बयान है आप सुन सकते हैं। जाकिर नाइक उसके बाद श्रीलंका जाना बंद कर दिया। फिर श्रीलंका के उलमा आए थे, आकर बम्बई में जुहू पार्क के पास, वहाँ पर हम लोगों ने प्रोग्राम रखा, बरेलवी उलमा ने जाकिर नाइक के घर के नजदीक में हमने प्रोग्राम रखा। प्रोग्राम में हमने कहा कि अगर तुम सच्चे माँ बाप की औलाद हो, तुम एक बाप के बच्चे हो, तो आओ जो वसीला के खिलाफ तुमने जो दलील दिया वो दलील यहाँ साबित करो। तो 8 साल से हमारे उलमा चैलेंज कर रहे हैं, अगर सामने नहीं आ सकते कम से कम यूट्यूब पर डाल सकते हैं। अगर वसीला का जो भी दलील वसीला के खिलाफ है वो अपने ट्विटर पे डाल सकते हैं। ट्वीट करता है, कहीं से दूसरी जगह जाने के बाद ट्वीट करता है कि हम अच्छी तरह पहुंच गए हैं, लेकिन वहां से जो सवाल लेकर आए उस सवाल का जवाब देने के लिए 8 साल से अभी तक वक्त नहीं है जाकिर नाइक को। कितना बड़ा गुमराह बेदीन है। हाँ, 1-2 गुमराही नहीं है उसकी, 1-2 गुमराही नहीं है उसका, कुफर तो इतना ज्यादा है तो वो कहता है अल्लाह जमीन पर इंसान बन के आ सकता है।
पहली बात तो डॉक्टर जाकिर नाइक वो तो आलिम है नहीं, वो तो अरबी उर्दू पढ़ना भी नहीं जानते, उनसे तो ये सब मतलब अकीदा के बारे में उसको खुद पता नहीं है, समझिए मेरी बात। तो जो अकीदा के बारे में पता नहीं है उसको आप जो है रहबर बना बैठे हैं आलिम होकर। उनका तो वो फील्ड भी नहीं है, वो तो खुद आलिम नहीं, ना वो आलिम है ना हाफिज है, ना वो तो वो सही तरह से कुरान पढ़ सकते, वो ये सब तो खुद कई वीडियो में खुद वो कह चुके हैं कि मतलब मैं आलिम नहीं हूँ, मैं तो बस। लेकिन हाँ, उनको गैर मजहब के मामले में थोड़ा उस पर थोड़ा वो इसमें महारत है, इसको थोड़ा उन्होंने मुतला किया है। वो तो डॉक्टर है, उससे दवाई पूछे हुए, और अकीदा के बारे में सही मैं बोल रहा हूँ, उसके पास नॉलेज नहीं है। आप बताइए, ये तो और ज्यादा डेंजर बात है। आप सुनिए, उसको इस्लाम के बारे में ज़्यादा मालूम नहीं है, इस्लाम के गैर इस्लाम के बारे में, हिंदुओं के बारे में, ईसाई के बारे में ज़्यादा मालूम है। जब कोई ईसाई अगर इस्लाम के बारे में अच्छी तरह जानकारी लेकर उससे डिबेट करेगा, वो इस्लाम के बारे में ऑब्जेक्शन करेगा, तो वो लाजवाब हो जाएगा। तो ईसाई लोग जैसा आप ईसाई से बहस करेंगे, तो ऐसा ईसाई लोगों में भी बहुत सारे मुनाजिर हैं जो इस्लाम के बारे में बहुत कुछ अंदर से बहुत सारे हदीसों का बहुत जानते हैं। तो वो अगर आपसे उनके साथ बड़े से बड़ा आलिम भी उससे बात नहीं कर पाते मेरे साथ। कभी अगर उनसे पाला पड़ जाएगा, आप अगर उनसे डिबेट करने जाओ ईसाइयों के बारे में कुछ मालूमात लेकर, वो फिर जैसा आप ईसाई के बारे में पूछोगे तो वो ईसाई भी आपको इस्लाम के बारे में पूछेगा। जब आपको इस्लाम का नॉलेज ही नहीं, आप खुद कह रहे हैं जाकिर नाइक को इस्लाम की मालूमात नहीं है, और वो हिंदू से डिबेट करने से पहले तो अपने बारे में ज़्यादा जानना चाहिए इंसान को। मैं मुसलमान हूँ, मैं पूरा इस्लाम मैं पहले जानूँ, इस्लाम पूरा जानने के बाद मुझे हिंदुओं के बारे में जानना है, ईसाइयों के बारे में, सिखों के बारे में, नास्तिकों, कम्युनिस्ट के बारे में, हर बारे में पहले जानना, हर बारे में जानने से पहले इस्लाम के बारे में सही जानकारी होना चाहिए। वो नहीं जानते तो मतलब वो अकीदे के बारे में बात भी नहीं करना चाहिए, वो बात भी नहीं करते, उनका ज़्यादातर मतलब उसी का अकीदा। जब उसको पता नहीं है कि वसीला जायज़ है या नहीं है, आप बताइए। अल्लाह कुरान में फरमाता है वकानू यस्तफ्तिहूना अलल लज़ीना कफरू। नबी जब दुनिया में आए भी नहीं थे, अभी दुनिया में नबी पैदा नहीं हुए थे, उस वक्त भी बनी इसराइल में कभी अगर जंग होती काफिरों के मुकाबले में, तो बनी इसराइल जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला से दुआ करते। नबी आए नहीं थे, नबी आने से पहले नबी का वसीला कुरान के अंदर सूरह बकरा में अल्लाह फरमाता वकानू यस्तफ्तिहूना अलल लज़ीना कफरू। तो नबी के वसीला नबी के वफात के बाद कैसे नाजायज हो जाएगा? हाँ, नबी के वसीले से दुआ करना तो मैं अभी तक तो नहीं सुना, मतलब ये हराम है, वसीला हराम है, शफा वसीला हराम है। और ये एक दो बयान नहीं, उसके कम से कम 10 बयान है वसीला हराम है बोल के। मैं तो अभी किसी मोतबर आलिम के पास जाकिर नाइक, वो तो बोल रहा हूँ उसको इस्लाम के बारे में जाकिर नाइक का फैन है आप बोले, ये गलत बात है। हम पता है ना इस मामले में, चूंकि हिंदुइज्म के बारे में उस मामले में बोल रहा हूँ मैं, किसी भी मामले में हिंदुइज्म के बारे में अगर आप जाकिर नाइक हिंदुइज्म के बारे में बहस करता है, मुनाजरा करता है, उसको जरूरत नहीं है। पहले वो इस्लाम के बारे में सही इस्लाम जानकारी करे। जब वो इस्लाम ही नहीं जानता तो हिंदुइज्म के बारे में क्या जानकारी लेगा? वो हिंदुइज्म के बारे में उसको बोलने की क्या जरूरत है? पहले इस्लाम के बारे में जानकारी करो। असल में क्या है, अंग्रेजों की तरफ से 2 शख्सियत इस वक्त छोड़े गए हैं मुसलमानों को कंफ्यूज करने के लिए। अंग्रेज का पिट्ठू है, इसलिए टाई पहनकर ये घूमता है, अंग्रेजी चीजों का बढ़ावा देता है, अंग्रेज की आदत को बढ़ावा देता है। अंग्रेज इस वक्त 2 शख्सियत को छोड़ रखा है मुसलमानों को तबाह करने के लिए, मुसलमानों को कंफ्यूज करने के लिए। एक का नाम है मिर्जा, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, और एक है जाकिर नाइक। ये 2 पाकिस्तान के आलिम, वो कुछ नहीं है, वो भी बंद कमरे में, लाखों फॉलोवर उसका है, वो भी बंद कमरे में बकवास करता है। वीडियो शूट करता है, वो तो खुद कुरान उसे देख कर ही पढ़ना मालूम नहीं है, लेकिन वो उसके चाहने वाले उसको बहुत बड़ा अल्लामा फहमा, दुनिया के सबसे बड़े उसको समझते हैं। उनको भी चंद कई लोग मतलब जो बंद कमरे में बैठ कर, एक रूम, ना तो मस्जिद है ना कोई मदरसा है, बस रूम के अंदर जो बैकग्राउंड हटा करके बस वो बयान करता है, वहीं पर चारपाई लगाइए, टेबल लगा करके। वो क्या है, कोई ना तो आलिम है, तो इंजीनियर है, वो इंजीनियर। अच्छा, बहरहाल वो सारे दूसरे इधर उधर की सारी बातें हुई। आप जो देवबंदी है, देवबंद के उलमा जो गलत किताबें लिखे, उन किताब के बारे में आपका क्या कहना है?
कौन सी किताब के बारे में बोल रहे हैं? गलत किताबें उलमा देवबंद का एक है बराहीन कातिया। बराहीन कातिया लिखने वाले हैं रशीद अहमद गंगोही। उसके अंदर लिखा हुआ है, गलत किताबें लिखी है। मैं पहले बोल दिया ना, इस मामले इस मुद्दे के ऊपर बात करने के लिए, उसको मतलब सही करने के लिए, परखने के लिए, जांचने के लिए बहुत सारे बड़े बड़े उलमा काम कर रहे हैं। हमारा वो काम नहीं है। हम ना देखो आप गलत जो उलमा देवबंद को सही समझ रहे हैं, आप सही या गलत उसको जानना आपको भी जरूरी है ना। तो आपकी इस्लाह के लिए आपको जानना है, क्योंकि उसमें आप जुड़े हुए हैं। मिसाल के तौर पर बीमारी आपको है तो सबसे पहले दवाई तो आपको जरूरत है। अपने आप में बस मैं एक मुसलमान समझता हूँ। बस ना देवबंदी के बुनियाद पर कोई जन्नत में जाएगा और ना जहन्नम में जाएगा। बस अपने अमाल के हिसाब से, अपने अमाल तो देखिए हर फिरके में अमाल है और हर फिरके में नेक अमाल है, नमाज है, रोजा है, हज, ज़कात हर फिरके वाले देते हैं। तो सिर्फ अमाल की बुनियाद पे जन्नत में जाएगा तो हर फिरके वाले जाएगा। तो हमारे हुजूर ने ये नहीं कहा कि हर फिरका जन्नत में जाएगा। हमारे हुजूर ने फरमाया एक फिरका जन्नत में जाएगा, बाकी 72 जहन्नम में जाएगा। तो अब एक फिरका जो जन्नत में जाएगा उसको पहचानना जरूरी है। आप कह रहे नहीं मुझे ये मेरा काम नहीं है, तो यानी आपको अल्लाह ने छूट दे दिया। आप चाहे किसी में भी रहो, आप किसी फिरके को मानो या ना मानो, आप हक रास्ते पे चलो या ना चलो, आपको जन्नत की सर्टिफिकेट अल्लाह ने दे दिया है ना। ऐसा चाहे अल्लाह जन्नत दे या जहन्नम दे, फिर आपको जन्नत का लालच भी नहीं और जहन्नम का खौफ भी नहीं। इसका मतलब आप अल्लाह के रहमत और अजाब का आपके पास कोई अकीदा नहीं है। अमाल की बुनियाद पर जाएंगे। अमाल की बुनियाद कुछ नहीं। सबसे पहले अकीदा की बुनियाद पे जन्नत जहन्नम का फैसला होगा। फिर अमाल अकीदा ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई अकीदा के बाद में अमाल, अकीदा से पहले अमाल है ही नहीं। बगैर अकीदा के अमाल कुछ नहीं है, जीरो बटा सन्नाटा। अमाल कुछ नहीं है, अकीदा पहले बाद में अमाल। बगैर अकीदा के अमाल कुछ नहीं है। अगर किसी ने कोई गलत किताब लिखी है तो उनके जिम्मेदार वो है, वो अल्लाह के सामने उसकी गिरफ्त होगी। हमसे उससे क्या मतलब है? जब अगर लिखा है, अगर नहीं कंफर्म लिखा है, अगर लिखा है तो वो जिम्मेदार है। और उसको देख कर भी कोई उसका फॉलोवर बने, गलत किताबें लिखकर जो गुमराही फैलाया है, उस गुमराह को फॉलो करने वाला उस गुमराही में शामिल है और उसी गुमराह के साथ वो भी जहन्नम में जाएगा। हम वो सब किताब पढ़ते ही नहीं है। चाहे पढ़े या ना पढ़े, बिना पढ़े भी उसका सपोर्ट कर रहे हैं, उसके साथ जुड़े हुए हैं, उसको रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं, उसकी जमात से जुड़े हुए हैं। देखिए हम ना जुड़े हुए, हम ना सपोर्ट कर रहे हैं, हमको कोई से मतलब ही नहीं है। हम अपना है, वो अपना है। मतलब नहीं होना भी तो गुमराही है, क्योंकि आप नबी, देखिए आपके एग्जाम्पल देता हूँ। आप कहीं रास्ते से जा रहे थे, दो बंदा एक दूसरे से मारपीट कर रहा है, लात घुसे से मार रहे हैं, बहुत जुल्म कर रहा है, एक दूसरे की बहुत तेजी पिटाई हो रही है, एक दूसरे को मार रहा है। अब दोनों आपके अनजान है, तो आप बोलेंगे मुझे क्या मतलब, मैं सीधा चुपचाप रास्ता से किनारा होकर मैं चला जाऊंगा, है कि नहीं। लेकिन अगर उसमें से एक, सुनिए बात मेरी कंप्लीट हुई नहीं, मेरी बात कंप्लीट हुई नहीं। जब एक दूसरे से मारपीट कर रहा है, उसमें कोई भी आपके पहचान के नहीं है, तो आप किनारे से चले जाओगे कि मुझे कोई मतलब नहीं। लेकिन उसमें से अगर एक सगा भाई है आपका, तो आप क्या किनारे होकर चले जाओगे? नहीं। या हमारे लड़ाई से क्या मतलब, चलो जाने दो, ये दोनों लड़के मरने दो। आपने सगा भाई हो तो आप छोड़ के चले जाओगे क्या कि आपके भाई को बचाओगे? लेकिन यही बात, अब मैं असल बात पे आ रहा हूँ। जो नबी की शान में गुस्ताखी किया, उस गुस्ताख का मुकाबला हम करते हैं, क्योंकि हमारे नबी है। हम नबी से जान से ज्यादा मोहब्बत करते हैं। और आपको नबी से कोई रिश्ता नहीं, नबी से कोई मतलब नहीं। आप सिर्फ दुनिया में लोगों को अपनी तरफ माइल करके हलवा मलीदा खा रहे हैं और नजराना ले रहे हैं। आप अपने इमामत बचा के रखे हैं, अपने बड़े अल्लामा मौलाना मुफ्ती बनकर आप मस्जिद के ओहदा संभाले हुए हैं। आपको सिर्फ अपना कारोबार से, अपना दुकानदारी से मतलब है, अपना इमामत से, अपना पैसा कमाने से मतलब है। नबी आपका कुछ नहीं है, आपका कोई भी ताल्लुक रिश्ता नबी से नहीं है। इस वजह से नबी के गुस्ताखी देखकर हमारा क्या मतलब उससे, ऐसा कह रहे हैं। लेकिन हमको मतलब है, क्योंकि हमारे आका हमारे जान से ज्यादा प्यारे हैं। हमारे आका के शान में जो गुस्ताखी किया वो हमारे सबसे बड़े दुश्मन है।
गुस्ताख देखिए, अब चूंकि अब फिर वो तो अब हयात नहीं है ना, बात तो ये है ना, जिसने अगर गलत किताबें लिखी वो तो दुनिया में मौजूद ही नहीं है, अब उसके ऊपर हम बात करके क्या उसको सुधार सकते हैं, बात तो अब यहाँ फंस जाती है ना। तो जब वो अबू लहब दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन हम नमाज में भी पढ़ते हैं, नमाज के अलावा भी पढ़ते हैं, तब्बत यादा अबी लहब व तब, अबू लहब का हाथ टूट जाए, हाथ तो पहले ही जमीन के अंदर मट्टी खा गया, लेकिन उसके नजरिया का हम हाथ तोड़ रहे हैं। अबू लहब के नजरिया का जो हाथ है ना, अबू लहब जो नजरिया छोड़कर गया नबी के गुस्ताखी का, उस गुस्ताख का हाथ आज भी तोड़ रहे हैं, तब्बत यादा अबी लहब व तब कह के। तो जो नबी के गुस्ताख मर गए, आज भी उसकी तारीफें हो रही है, उसके फिरके वजूद में है, उसके फॉलोवर है, लोग उसको मुजद्दिद मानते हैं, लोग उसको रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं। तो उसके खिलाफ हमें बोलना, वो मर गया तो उसके नजरिया तो जिंदा है, उसके नजरिया से लड़ना, गुस्ताख के खिलाफ लड़ना है। अल्लाह ने सिखाया हमें, तब्बत यादा अबी लहब व तब। फिर अबू लहब जिंदा होता, अबू लहब के सामने कोई पढ़ता, तो वही आपका कहना है कि वही सही है, बाकी आप मर गया, उसके नजरिया के खिलाफ कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन अल्लाह ने तो कुरान में कहा, अबू जहल की जहाँ तक बात है तो कुरान की आयत, चूंकि अब ये कुरान की आयत बन गई है ना, इसलिए हम अबू जहल की वजह से नहीं पढ़ते उसको, उस बात को, बल्कि कुरान की आयत की वजह से हम पढ़ रहे हैं। हम तो अबू जहल की अबू लहब की वजह से पढ़ते हैं, क्योंकि ये जब तब्बत यादा पढ़ते हैं ना, तो हमें नबी का गुस्ताख याद आता है। कोई भी अगर नमाज में तिलावत करता है या कभी पढ़ते हैं तो वो अबू जहल की वजह से, वो मतलब जैसे हम अबू लहब के दुश्मनी लिए हुए, सुनिए ना, इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह कीमिया सआदत में फरमाते हैं कि जब कुरान शरीफ में जो नजरिया की बातें पढ़ो, उस जहन में लाओ, उस वाक़िया को जहन में लाओ। जब दरूद पढ़ो तो दरूद पढ़ो, नबी को सामने समझकर पढ़ो। जब आप जन्नत के बारे में तज़किरा करो, जन्नत को अपने सामने समझो। जब जहन्नम का तज़किरा सुनो, जहन्नम को अपने सामने समझो। इसी तरह जो पढ़ो उसको गौर व फिक्र करके पढ़ो। जब हम तब्बत यादा पढ़ेंगे तो अबू लहब पर गौर करेंगे कि अबू लहब ने नबी की गुस्ताखी किया, उसका ये अंजाम हुआ। जो पढ़े लिखे लोग हैं उसको समझ में आएगा, लेकिन जो जाहिर आवाम है, आप तो पढ़े लिखे की बात कर रहे हैं, आप तो पढ़े लिखे हैं, आप आलिम हैं, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। जो मौलाना साहब अगर करते हैं तो सोच कर पढ़ेंगे, सही बात है, लेकिन जो आवाम है ना, क्या वो मर गया तो उसकी सोच अभी है ना। रशीद अहमद गंगोही ने जो सोच दिया है, जो दारुल उलूम देवबंद को बना के गया है, वही देवबंद को आज जो है मुसलमानों को गुमराही के दलदल में ढकेल रहा है मुसलमानों को, वही देवबंद वाले। उन्होंने गलत किए बोल के हम उनको और मतलब चर्चे में ले आते हैं हम लोग उसको। नहीं, चर्चा में लाना पड़ेगा ना, गलत चर्चा में लाने से कोई बुराई नहीं है, लेकिन गलत चर्चा होगा, गलती का चर्चा होगा तो समझ में आएगा। 10 साल 20 साल हम चर्चाएं नहीं करेंगे ना, वैसे ही खत्म हो जाएगा वो चीज। वो चर्चा करने से खत्म नहीं होती और चर्चा करने से बढ़ावा भी नहीं होती। जो गलत ना, देखिए हक वाला भी क़यामत तक रहेंगे, हक वाला भी, सुनिए, हक वाला भी क़यामत तक रहेंगे, गुमराह भी क़यामत तक रहेंगे, लेकिन जो गलत आदमी सही बनकर आएगा दुनिया में, लोग धोखे में रहेंगे, लोगों को धोखा में नहीं रखना चाहिए। गंगोही का मानने वाला गंगोही को उसकी असली काम, उसके सही, सुनिए, गंगोही का मानने वाला गंगोही के जो काम कारनामा है उसी से पहचाने, उसके काले कारनामा को अच्छा समझकर लोग, जैसा गंगोही जितनी गंदी बातें किताबों में फैलाया है, जितनी गुस्ताखी अपनी किताबों में फैलाया है, उन किताबों को छुपाकर रशीद अहमद गंगोही बहुत बड़े अल्लाह के वली थे, माज़अल्लाह, बहुत नेक इंसान थे, बहुत बड़े अल्लामा थे, इस तरह की बातें फैलाकर लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अब जब हम उसका चर्चा करेंगे, उसकी असली बात सामने आएगा। रशीद अहमद गंगोही अंग्रेज को रहमदिल गवर्नमेंट कहा, अंग्रेज को मालिक व मुख्तार कहा, अंग्रेज की रहमदिल गवर्नमेंट के साथ लड़ना हराम कहा। ये सारी बातें छुपाया जा रहा है, इसलिए हम मंजर हम पर लाना चाहते हैं ताकि आवाम को उसकी असलियत का पता चले। हम तो उनके जमाने में थे नहीं, तो हम उनके बारे में क्या बता सकते हैं। एक वाकया और याद आया। सफा और मरवा पहाड़ के दोनों तरफ, सफा पहाड़ी पर एक बुत खड़ा था जिस बुत का नाम था आसिफ, और मरवा पहाड़ पर एक औरत की बुत थी जिसका नाम था नाइला। ये दोनों काबे के अंदर बदकारी किया था, जिसको अल्लाह के अजाब से पत्थर बना दिया गया था।
تو بعد میں جو لوگ کعبے میں گئے، کعبے میں جو گمراہ لوگ بت پرست لوگ وہاں قابض تھا، وہ لوگ کعبے میں گئے تو دیکھے دو بت کھڑے ہیں، دونوں بت ہیں، پتھر بن گیا تھا، تو وہ دونوں بتوں کو پہاڑ پہ رکھ دیا، صفا کے پہاڑ پہ رکھ دیا اور نائلہ کے پہاڑ پہ مروہ کے پہاڑ پہ رکھ دیا، آصفہ اور نائلہ کا مورتی کو، اور وہ لوگ پوجا کر رہے تھے، بہت نیک انسان، بہت اچھے متقی پرہیزگار، بہت بڑے اللہ والے تھے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ تو یہ سارے پول کس نے کھولا؟ جب مکہ پر قبضہ ہوا، بتوں کو توڑ کر ان بتوں کو ہٹایا کہ یہ بدکار لوگوں کی مورتی ہے، یہ کوئی نیک انسان نہیں تھے، تو چرچا کرنا پڑا تاکہ لوگوں کو ان کی اصلیت کا پتہ چلے، کیونکہ لوگوں کے ذہن میں تھا یہ نیک لوگ تھے اور نیک لوگ تھے، بعد میں اللہ والوں کو اللہ والے ثابت کرنا پڑا اور بدکار لوگوں کو بدکار ثابت کرنا پڑا، تب جا کر لوگوں کو بات سمجھ میں آئی۔ تو اسی طرح اگر چرچا کرنے سے برے لوگوں کا اور بڑھاوا ہوتا ہے، یہ غلط بات ہے، برے لوگوں کا بڑھاوا نہیں ہوتا، اصلیت سامنے آتی ہے، سمجھے؟ آپ رشید احمد گنگوہی کے کتاب کو جائزہ لیجئے، اسماعیل دہلوی کا، اشرف علی تھانوی کا اور خلیل احمد امبیٹوی کا، قاسم نانوتوی کا، ان کی کفریات آپ دیکھیے، ان کو کوئی بھی مسلمان نہیں سمجھ سکتا، اور آپ کہہ رہے ہیں ان سے کوئی ہمارا تعلق نہیں، تعلق بھی ہمارا نبی سے تعلق ہے، نبی کے دشمن کو ہم پہچاننا چاہتے ہیں، سمجھے؟ یہی اصل بات ہے۔ اگر نبی کے دشمن کو آپ اگر پہچان بھی نہیں کرائیں گے، نبی کے دشمن کو بھی چھپا کے رکھیں گے اور وہ دشمن کا بڑھاوا ہوگا تو اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ آپ کو نبی سے رشتہ ہے، اگر آپ مسلمان کہتے ہیں خود کو، آپ خود کو مسلمان سمجھتے ہیں، مومن سمجھتے ہیں، تو آپ سے نبی کا رشتہ ہونا چاہیے، اور اگر نبی کا رشتہ ہے تو نبی کے دشمن کے آپ کو دشمن کا رد کرنا چاہیے۔ اب یہ قرآن شریف میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ فرمایا، واقعہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا کہ قد كانت لكم اسوة في ابراہیم والذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم ابدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ابدا۔ یہ جو آیت ہے اس میں فرمایا گیا ابراہیم علیہ السلام تمہارے لیے نمونہ ہے، ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھی کیوں نمونہ ہے؟ وہ بت پرستوں کا رد کیا کرتے تھے، بت پرستوں سے اپنی براوت کا، اپنی بیزاری کا اظہار کرتے تھے، اور تمہارے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، تمہاری برے اعمال سے ہم بیزار ہیں، اس بنیاد پہ ابراہیم علیہ السلام تمہارے نمونہ ہے، تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بد مذہبوں کا رد کرنا بھی اللہ کو بہت پسند ہے، اور اسی پسند کی بنیاد پر ابراہیم علیہ السلام کو ہمارے لیے اللہ نے آئیڈیل و ماڈل بنایا ہے اور اسوہ حسنہ قرار دیا ہے۔ تو ہر باطل جو بھی گمراہی ہو، ذاکر نائک کی گمراہی، تبلیغ جماعت کی، مولانا سعد، مولانا اس میں طارق جمیل اور ذاکر نائک، مرزا پلمبر، یہ جتنے بھی گستاخ بددین بدعقیدہ ہیں، ان سب کی گستاخی وضاحت کے ساتھ بیان کرنا ایمان کا تقاضا ہے، نبی کی محبت کا تقاضا ہے۔ بہت بڑی بات ہوئی، اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، گمراہی سے بچائے، اور آپ کو بھی دوسرے لوگوں کو گمراہی کا ذریعہ بننے سے بچائے، اور آپ کے ذریعہ سے اگر کوئی گمراہ ہوئے ہو ان کو بھی اللہ ہدایت عطا فرمائے، آپ کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔